Okay, I'm glad to be here. Wonderful to be here this evening, and I just want to share some thoughts that I have within my heart. मेरा दिल में जो परमेश्वर रखा है वो मैं बोलना चाह रहा हूँ. And yes, I want to speak on something that is very important this evening. The world is going into something and people are wondering what is happening. And people may think this is a judgment from God. People may think, no, it is not a judgment. That's fine, whatever it is. But one thing is correct, that is, we are in the end times. In the end times, some people think there is rapture. Some people think there is no rapture. Some people think there is rapture, but not now, after 666. So that's fine. 666 का बाद होगा या 666 से पहले होगा या रैप्चर अगर नहीं भी होगा तो भी एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि हम रेडी रहना है. रैप्चर अभी होगा तो भी रेडी रहना है. अगर रैप्चर अभी नहीं है तो बाद में आएगा तो भी रेडी रहना है. अगर रैप्चर नहीं भी है फिर भी रेडी रहना है. एक चीज़ यीशु मसीह ने बताया था कि मैं आने जा रहा हूँ, मेरा आगमन जो है कोई नहीं जानता और खुद मैं भी नहीं जानता हूँ, सिर्फ परम पिता जानता. और यीशु मसीह वो भी बोला कि माई कमिंग इज़ लाइक अ thief in the night. When Jesus said I don't know when I am going to come, only Father knows, it doesn't mean Jesus did not know or Jesus doesn't know the future. No, it's not like that. He said I don't know, only God knows. It means that he didn't want to reveal it. So it is a surprise. When Jesus is coming, whether it's a rapture or non-rapture, if it is direct coming, when it is going to happen, it is a surprise. One thing we need to understand, it is surprise. From last 2000 years, the church is waiting for his coming. Nobody knows when he is going to come. So that is a surprise. So there are things happening, that's fine. And Jesus also said these things are going to happen before I come. So ये चीज़ बहुत साल से चल रहा है, बहुत साल से बहुत चीज़ हो रहा है. तो यीशु मसीह आने का वक्त आ गया है और एज में है करके हम सभी जान पा रहे हैं, अंत में है. तो क्या करना है? रेडी रहना है. इसका बारे में हम थोड़ा सोचते हैं, देखते हैं. जॉन चैप्टर 5 में तो लेट्स रीड दैट. आफ्टर दिस देयर वाज अ फीस्ट ऑफ Jews and Jews went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. Bethesda means mercy, house of mercy. And in this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the waters was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there, he knew that he already had been in that condition a long time. He said to him, do you want to be made well? The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. Jesus said to him, Rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर एक आदमी है बेथेस्दा का पास में 38 साल से पड़े हुआ है.
पैरालाइज्ड होगा, उठ नहीं पाता और वहाँ पर जा नहीं पाता। जाने तक खींच खींच के जाने तक कोई और वहाँ पर चंगाई पाले रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है कि पूल ऑफ बेथस्दा में कभी कभी एंजल आता है और पानी को हिलाता है। एंजल आएगा, पानी को हिलाएगा, और जितना लोग भी वहाँ पर खड़े हैं, जितना लोग भी बीमारी लोग हैं, उसमें से जो पहला पानी में जाएगा उनको चंगाई मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर एक बार सोचेंगे, ये एंजल कब आएंगे? एंजल कब आएंगे किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। एंजल क्रिसमस का टाइम में आएंगे क्या? नहीं लिखा। साल में 2 बार आएंगे? नहीं लिखा। 6 महीने के बाद आएंगे? नहीं लिखा। और महीने में 1 बार आएंगे? नहीं लिखा। हर सैटरडे आएंगे? नहीं लिखा। संडे आता है क्या? नहीं लिखा। एंजल कब आएंगे नहीं पता। बाइबल में लिखा है एट टाइम्स, कभी कभी या कुछ समय में एंजल आता है। कौन सा टाइमिंग है पक्का किसी को नहीं मालूम है। तो जब टाइमिंग नहीं मालूम है कब एंजल आता है, तो वहाँ का लोग कैसा देखता होगा, पानी कब हिलेगा करके, एंजल कब आएगा करके, कितना सावधान होके रहता होगा। क्योंकि जब भी एंजल आएगा, पानी को हिलाएगा, कितना लोग चंगाई पाता है? सिर्फ एक ही। कितना लोग पानी में गिरता? सबका सभी गिर सकता है, गिरता होगा। क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कौन पहले गया, मगर जो उठ के मेरे को चंगाई मिला करके गवाही देता, वही पहला गिरा है। सब रेडी रहता, सब रेडी रहते थे, कब एंजल आएगा, कब हिलाएगा, हम कूद लेंगे। टाइमिंग नहीं दिया तो वहां पर एड्ज में ही सब खड़े होके पानी भी पीता है, तो एक पानी भी पीने का टाइम में भी देखता होगा, चाय भी पीने का टाइम में भी देखता होगा एंजल अभी आएगा क्या, रात में आएगा, दिन में आएगा, वो भी नहीं लिखा। रात में भी किसी को रखा होगा, भाई मेरे लिए रात भर जगे रहो, और अगर एंजल आएगा तो मेरे को मत उठाओ, मेरे को उसमें डाल दो, पानी में डाल दो, पानी में फेंक देना मेरे को, क्योंकि आप बोलने तक दूसरा कोई और चले जाता। इतना सावधान होके, इतना रेडी होके वो लोग वहां पर बैठा है चंगाई के लिए। इससे हम कुछ सीख सकते हैं। सेम टू सेम जैसा यीशु मसीह ने बोला वो कब आएंगे हम कोई भी नहीं जानता, वैसे ही हमें भी रेडी रहना है। अगर आज यीशु मसीह आएंगे, क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? यीशु मसीह अगर आज आएंगे तो, यीशु मसीह आज आएंगे तो आप बोल सकते हैं, पर मैं यीशु मसीह आप आज मत आना, क्योंकि मैं अभी एंगेजमेंट हुआ है मेरा, शादी करना है, थोड़ा रुक के आना, शादी होने के बाद आना। कोई बोलता है यीशु मसीह मैं शादी कर लिया मगर अभी मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, अभी मत आना, बच्चा पैदा करने के बाद आना। कोई घर का फाउंडेशन डालते हैं, बोलते हैं कि हमारा घर बनने के बाद आना। हम लोग सब कुछ प्लान करते 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 यीशु मसीह आने के लिए रेडी हैं कि नहीं बोलने से थोड़ा सोच रहे हैं, क्या मैं सही में रेडी हूँ? मेरे को शादी नहीं हुआ, शादी होने दो ना, उसका बाद आना, नहीं तो घर बनने दो ना, उसका बाद आना, प्रमोशन मिलने दो, उसका बाद आना। हम लोग टाइमिंग लगा रहे हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह कब आएंगे कोई नहीं जानता। क्या आप रेडी हैं? जैसा एंजल कब आएंगे किसी को नहीं पता। ये लोग हमेशा सावधान होकर रेडी होकर रहा, वैसा हमें भी रेडी रहना है। और एक चीज़ वचन में लिखा है कि जीसस कम्स एज अ थीफ इन द नाइट। चोर जैसा रात में आते हैं, वैसा यीशु मसीह आते हैं। कोई बोलते हैं कि रात में लिखा है भाई, तो यीशु मसीह रात में आता है। अच्छा जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात में आता है तो ये भारत का रात है, इंडिया का रात है कि अमेरिका का रात है या जेरूशलेम का रात है? कौन सा रात में आता है? कौन सा टाइम फ्रेम में आता है? किसका रात में? अमेरिकन का रात में कि इंडियन का रात में?
मतलब वो नहीं है जी, मतलब रात में रात का बात नहीं है। मतलब ये है कि बिना बोल के जैसा चोर आएंगे वैसा यीशु मसीह का आगमन भी या रैप्चर भी बिना बोल के आएगा, मतलब अचानक होगा। आप रेडी हैं कि नहीं? यहाँ पर जैसा ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, रेडी था। जब भी स्वर्गदूत आके पानी हिलाते तो वो लोग गिर के सिर्फ एक आदमी उसमें से बचता था, मतलब चंगाई मिलता था। यहाँ पर तो मौका और भी है था, और भी था। अगर एक बार निकल गया तो दोबारा एंजल आएगा, मगर यीशु मसीह का दूसरा आगमन ऐसा बार बार होने वाला चीज़ नहीं है। एक बार रैप्चर होगा, उसका बाद सेकंड कमिंग होगा, सेकंड कमिंग के बाद थर्ड कमिंग नहीं है, बार बार होगा करके सोचने के लिए। तो इसीलिए, और अगर रैप्चर में भी नहीं गया तो 7 साल का क्लेश में बच नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर रहने के लिए कोई आशा भी नहीं करना है। अगर रैप्चर पहले होता तो इतना ही हमें इच्छा करना है कि यीशु मसीह आप आइए। आप अगर आते हैं, आज आता है तो हम रेडी हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार रहना है। यीशु मसीह का साथ जाने के लिए हम रेडी रहना है। पृथ्वी का जो धन दौलत जो है, स्वर्ग से कंपेयर करने से ये कुछ भी नहीं है। पृथ्वी में जो सोना जो है, सोना का भाव तो बढ़ गया, डबल हो गया। ये सोना, पृथ्वी का जो सोना है, स्वर्ग का सोना का साथ कंपेयर करने से पृथ्वी का सोना एक कोयला जैसा रहता है, कोयला जैसा। तो इट्स लाइक अ कोल, इट्स नॉट, इट्स फॉर अस इट इज गोल्ड, बट कंपेयरिंग विद अ हेवनली गोल्ड इट इज लाइक अ कोल, इट्स नॉट ऑफ एनी वर्थ एट ऑल. So let us not put our focus more on the earthly things. Rather, I'm not saying don't have bank balance, don't save money, don't do anything, don't plan. I'm not saying don't plan. आप लोग प्लान करिए, सेव करिए, सेविंग करिए, सब कुछ करिए, मगर अंदर में, हार्ट में कोई भी चीज़ों का ऊपर में हार्ट मत लगाओ। लूत का वाइफ का जैसा धन दौलत का ऊपर में अपना हाथ मत लगाओ। अगर आज छोड़ना पड़ता तो छोड़ने के लिए रेडी रहना। बैंक बैलेंस इतना है, यीशु मसीह आज मत आना, ये पूरा खर्चा होने के बाद आना करके टाइमिंग मत देना यीशु मसीह को। यीशु मसीह को टाइमिंग हम ही लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेडी नहीं हैं। हम लोग ये सोचना है कि ये रेडी रहना है कि यीशु मसीह आप आओ, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम रेडी हैं, आज भी रेडी हैं, राइट? तो वी हैव टू बी रेडी, दैट्स व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हियर। उसके बाद ये आदमी जो है, ये आदमी के पास मदद करने के लिए कोई नहीं था, और यीशु मसीह आया और पूछ रहे हैं कि क्या आप चंगाई पाना चाहते हो? तो ये वो आदमी बोल रहे हैं कि सर मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं है जी, जब तक मैं वहाँ तक खींच के जाऊँगा तब तक दूसरा कोई आ जाता है, तो इसलिए मेरे को चंगाई नहीं मिल पा रहा था। तो यीशु मसीह पूछ रहे, ठीक है आप चंगाई पाना चाहते हो? हाँ जी मैं ज़रूर पाना चाहता हूँ। एक बार सोचिए ये आदमी क्यों वहाँ पर बैठा है, इतना सालों से वहाँ पर क्यों बैठा है, 38 साल से वहाँ पर क्यों बैठा है? उसका आंखों का सामने हज़ारों लोग चंगाई पाके निकल जा रहा, मगर इनका टाइम नहीं आ रहा। मगर वो सोच रहे कि कभी ना कभी मेरा टाइम आएगा, उसका विश्वास है, वो विश्वास रखा है कभी ना कभी मेरा टाइम आएगा। वो टाइमिंग, वो टाइमिंग का बारे में वो कभी कम से कम मेरा मृत्यु होने से पहले मैं चंगाई पाऊंगा करके उनका अंदर में एक विश्वास था। तो हम तो वो बिलीव कर रहे हैं कि मेरे को चंगाई मिलेगा, मगर चंगाई पाने के लिए नहीं हो रहा। तो यीशु मसीह वो सब इंसिडेंट को देखा अपना स्पिरिट में, और वहाँ पर आया। यीशु मसीह वहाँ पर आया और यीशु मसीह
उनको देखा और मदद करने के लिए वहाँ पर रेडी था। और वो आदमी का पास मदद करने के लिए कोई नहीं था। विश्वास है मगर मदद करने के लिए नहीं है, हेल्पलेस। यहाँ पर एक चीज़ हमें छोटा सा चीज़ सीख सकते हैं। ही हैज़ होप बट ही वॉज हेल्पलेस। ओके, ही हैज़ होप बट ही वॉज हेल्पलेस। विश्वास है, आशा है चंगाई पाना है करके, मगर हेल्पलेस है। You may be having hope, you may be having faith, but you may be helpless in times. You know what? Jesus is there to all those who are helpless. लोग साथ नहीं देंगे, अगर आपको कोई भी इंसान नहीं साथ दे रहा होगा, मगर यीशु मसीह आपको साथ देंगे। जिनको भी अगर लोग साथ नहीं देंगे, यीशु मसीह साथ देंगे, क्योंकि वो बोला है मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो हमेशा हमारा साथ रहने वाला है। होपलेस सिचुएशन में, हेल्पलेस सिचुएशन में सिर्फ आपको यीशु मसीह का पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो आपको ज़रूरत का टाइम में मदद करने वाला। यीशु मसीह अभी भी जिंदा है, वो आपका साथ है। लोग नहीं साथ नहीं देंगे, मगर यीशु मसीह साथ देंगे। ये आदमी को कोई भी साथ नहीं दे रहा था। वो अपने आप खींच के जाने तक दूसरा कोई और चंगाई पा ले रहा है। तो यीशु मसीह वो हेल्पलेस कंडीशन को देख के वहाँ पर आया और उनको पूछ रहा है, मैं जानता हूँ 38 साल से आप यहाँ पर पड़ा है, आपका अंदर में विश्वास है, आप यहाँ से चंगाई पाके ही जाना चाहते हो, आपका अंदर विश्वास है, ये देख के मैं आया हूँ, क्या आप चंगाई पाना चाहते हो? ये सब यीशु मसीह बोला नहीं, मगर यीशु मसीह का दिल में देखा है ये आदमी वहाँ पर चंगाई पाने के लिए बैठा है करके, और बोला है कि अगर कोई मदद करता है तो मैं जा सकता हूँ। मगर यीशु मसीह बोला है कि ठीक है, राइज अप एंड वॉक, राइज अप, टेक योर बेड एंड वॉक। तो राइज अप एंड टेक अप एंड वॉक कैसा? ये आदमी 38 साल से यहाँ पर बैठा है, वो कभी ट्राई नहीं किया क्या टू गेट अप एंड वॉक? ट्राई किया होगा बहुत बार, फिर भी नहीं हुआ। मगर यहाँ पर यीशु मसीह जब बोल रहे हैं राइज अप एंड वॉक, कुछ तो हुआ है। बाइबल में लिखा है कि इमीडिएटली द मैन वॉज मेड वेल, टुक अप हिज बेड एंड वॉकड, एंड द डे वॉज सबात। इमीडिएटली कुछ हुआ है। अभी तक इतना बार ट्राई किया है, कुछ हुआ नहीं है, मगर अभी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? बोलने वाला कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह का वचन में क्या मिलता है? विश्वास मिलता है। बाइबल सेज faith comes by hearing, hearing from the word of God, word of Christ. The words of Christ gives us faith. The news gives us fear. आप ज़्यादा टाइम न्यूज़ देख रहे होगा, आपका अंदर में डर पैदा होगा। ज़्यादा समय वचन का साथ टाइम स्पेंड करना, आपका अंदर में फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। हम भी ये कोरोना का टाइम में बीच में बहुत बार न्यूज़ पढ़ा, न्यूज़ देखा, और अंदर में घबराहट होता है, अंदर में डर पैदा होता है। मगर वचन पढ़ने से डर भाग जाता, विश्वास बढ़ जाता। सॉल्यूशन यही है। हम ये नहीं बोल रहे कि अपने आप सावधान मत रहो करके, नहीं बोल रहा, सावधान रहना, मगर वचन पढ़ने से आपका अंदर में फेथ बढ़ेगा। आर यू बिल्डिंग योर फेथ और आर यू बिल्डिंग योर फियर? दैट्स द पॉइंट हियर. One thing we are learning, that Jesus is coming very soon. We know that Jesus is coming and we have to be ready. And second thing that we need to understand is how is our faith? Do we have faith, enough faith?
or do we have fear? Faith versus fear. And faith flees away fear. अगर आपका अंदर विश्वास है वो डर को भगाएगा. अगर आपका अंदर में डर है तो विश्वास को आने नहीं देगा. होना है तो विश्वास होना है, नहीं तो डर होना है. आपका अंदर में क्या है? अगर डर है तो आपको क्या करना है? न्यूज़ देखना कम करना है और वचन पढ़ना बढ़ाना है. क्योंकि वचन से विश्वास मिलता है, न्यूज़ से डर मिलता है. तो हमें as believers we have to build up our faith, because that's the only solution. Even if you get sick, you have faith to get healed. Without faith there is no healing. And also not to get sick, you need to have faith. How do you get faith? By the scriptures, by the word of God. Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. तो यीशु मसीह का वचन से, परमेश्वर का वचन से हमें फेथ मिलता है. सो कीप योर टाइम, स्पेंड टाइम मोर इन रीडिंग गॉड्स वर्ड, टॉक गॉड्स वर्ड, स्पीक गॉड्स वर्ड, लिसन टू गॉड्स वर्ड, वॉच गॉड्स वर्ड, स्पीक टू पीपल गॉड्स वर्ड, एंजॉय रीडिंग गॉड्स वर्ड, एंजॉय एवरीथिंग इन गॉड्स वर्ड. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको बहुत कुछ, आपको वचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वही आपको विश्वास दिलवाएगा. वचन से ही आपको वचन से ही आप विश्वास पाएंगे. अगर वचन आपका अंदर में नहीं है तो डर पैदा होगा. तो आज का माहौल में, आजकल का माहौल में हमारा अंदर में वचन ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ज़रूरी है. डर को भगाना है, विश्वास को लाना है. विश्वास आने से अपने आप डर भी भाग जाएगा. तो ये चीज़ हमें डेवलप करना है. एंड नेक्स्ट थिंग that we need to understand is that this person, he got up. He got up. When he got up, when he heard the words of Jesus. When he heard that Jesus said something, okay, I'm rising up. यीशु मसीह के वचन में ताकत है, विश्वास पैदा हुआ है उनका अंदर में. Same thing, you read God's word, you listen to God's word, you speak God's word, the faith will grow in your life, right? So that's the second thing we can understand. Okay, so next thing what happened is, the person heard of faith, heard of Jesus' words, and what did he do? Immediately he got up, he took his bed and he walked. Action. मेरा अंदर फेथ है, मेरा अंदर फेथ है बोलने से नहीं होता. फेथ को एक्शन में दिखाना पड़ता. Your faith must get into actions. Understand what I'm saying? Your faith must come into actions. Faith comes by hearing God's word, and that faith has to get into the action, get into the actions. Understand? So this is what I want to tell everyone, that Jesus is coming soon, very soon, and we don't know when he is coming, but we are almost at the end of the end times. So things are happening, let it happen. And what we need to understand is, it is not about the doctrine of end times, it is about the readiness of God's coming, Jesus coming. So it is not about, don't be deviated by the doctrines of sequence of end times. कब क्या होगा होने दीजिए, मगर आप रेडी हैं कि नहीं, वो आप अपना रेडीनेस को देखिए. तो आप रेडी रहना है, आप दूसरों को भी रेडी रखना है. और सिर्फ आप ही चले जाने से नहीं होगा, आपका साथ साथ बहुत लोगों को लेके जाना है. इसलिए आप रेडी रहना. और यीशु मसीह कब आएंगे, आज भी अगर आएगा तो आप जाने के लिए तैयार रहना. हम तो रेडी हैं. आई एम रेडी ऑलवेज. इफ जीसस कम्स टुडे, आई एम वेरी हैप्पी. आई वांट जीसस टू कम, एंड इफ ही कम्स टुनाइट, आई एम रेडी टू गो. आई कैन लीव एवरीथिंग, and I know for sure that my family also will come with me, because they love Jesus.
So I'm not worried at all that if Jesus comes tonight, we are all ready to go with him. So we should be ready. What about the house, bungalow और गाड़ियाँ ये वो, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये पृथ्वी का चीज़ है, पृथ्वी में रहने दो, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? यीशु मसीह के पास जाना है, वही बेहतर है, महत्वपूर्ण है, वहाँ जाना है। तो रेडी रहना है। जब यीशु मसीह आएगा तो जाने के लिए रेडी रहना है। That's what we can learn out of this scripture, that these people, sick people, they were waiting for the angel to come, and they did not know, no idea, they don't have any idea when the angel was going to come, and the dates were not given. All of a sudden angel would come, and they had to wait and be watchful for the coming of the angel. The same way we have to be watchful for the coming of Lord Jesus Christ. He would come anytime like a thief in the night, and we have to be ready. If he comes, I'm going with him. Hallelujah. So come Lord Jesus, come. We are ready, we are waiting for you to come. And let us be ready. We'll encourage all the others. We'll encourage, build up your faith, and your faith will make you understand these things and make you stronger and stronger, and you will be ready. If you have fear, you cannot be ready. You have to leave the fear, you have to build your faith. So this is what I want to encourage all of you, to be ready, to have faith, and to put your faith in action, and be ready. Encourage people to be ready. God bless you. Thank you.